مشیر زراعت منظور وسان کے خلاف زائد اثاثوں کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ نیب نے منظور وسان کے خلاف انکوائری بند کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر کے جواب پر ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، بلال احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بلال، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، مشیر زراعت منظور وسان کو بڑا ریلیف مل گیا ہے اور نیب نے انہیں کلین چٹ دے دی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا الزام عائد کیا گیا تھا نیب کی جانب سے منظور وسان کے خلاف، لیکن آج جب کیس کی سماعت ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں تو دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا کہ منظور وسان کے خلاف کسی قسم کے شواہد نہیں ملے، جس کے بعد اب عدالت نے منظور وسان کی یہ جو درخواست تھی جو کہ ضمانت اور نیب انکوائری سے متعلق تھی اس کو نپٹا دیا ہے اور نیب کی جانب سے منظور وسان کے خلاف جو انکوائری تھی اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ انکوائری کو بند کر دیا گیا ہے۔ بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، ریلوے لائنز بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ کوٹ دوڑ کے مقام پر ریلوے لائن شدید متاثر ہوئی ہے۔ ٹریک پر تاحال پانی بھی جمع ہے۔ تفصیلات محسن الملک سے جانتے ہیں۔ محسن، بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں سب سے افیکٹڈ ایریا، بارشوں کے بعد سیلاب آنے کی وجہ سے جو افیکٹڈ ایریا تھا وہ نواب شاہ کا علاقہ تھا۔ تو یہاں پر 2 سٹی کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ریلوے ٹریک پر اس جگہ پہ ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کا ریلوے سسٹم جو ہے وہ معطل ہو گیا تھا۔ اگر تھوڑا سا دکھائیں آپ کو ٹریک کس طریقے سے متاثر ہے، ابھی بھی خواہ کہ ابھی اس کو جزوی طور پر بحال کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی پانی ٹریک کے اوپر ہے۔ پانی سے ڈیمیجز ٹریک کے بہت زیادہ ہوئے ہیں، ریلوے کا بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے۔ اگر یہاں پر دکھاؤں تو ابھی بھی 2 فٹ جو ہے وہ پانی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے اور پانی مسلسل ابھی بھی آ رہا ہے، خواہ کہ ابھی پانی بہت نکل گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سلیم جلوانی صاحب ہیں، ایکس ایم پی اے بھی ہیں اور سارے علاقے کی تمام تر ڈائمیکس کو جانتے ہیں۔ تو جب یہاں پر سپیل آیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی ایگزیکٹ یہاں پہ؟ پہلی برسات جو ہوئی تھی اس کے بعد جو 3 دن کنٹینیوسلی برسات ہوئی اس نے ساری جتنی بھی ڈسٹرکشن تھی اسی نے کی ہے، اور خاص طور پہ وہ گھنٹوں کے نہیں حساب سے، ایسے سمجھ لیں کہ کسی وقت بہت تیز تھی، کسی وقت بہت سلو تھی، لیکن کنٹینیوسلی تھی۔ اس نے اس پورے علاقے کو ڈبو دیا۔ اب جو آپ نے پیچھے ایک دیکھا ہے قبرستان، مٹھو فقیر قبرستان کہلاتا ہے، وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور خاص طور پہ یہ ریلوے ٹریک یہ آپ کو دور تک نظر آ رہا ہے۔ یہ سارا پانی، یہ پانی کراسنگ تھا، یہاں دونوں طرف سے، دونوں اطراف سے ایک جیسا پانی تھا۔ تو ٹرین بالکل نہیں چل سکتی؟ ٹرین کی کل شروع ہوئی ہے ٹرین، ٹھیک ہے، بیچ میں بالکل معطلی تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمیجز ابھی بھی ہیں، اس کو ریہیبلیٹیٹ ہونا۔ یہ اس وقت تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ریلوے کے ادارے کی طرف سے کوئی آیا ہو اور انہوں نے کوشش کی ہو، ان کا اپنا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا۔ آج تک ایسا ہوا ہے ہسٹری میں؟ پہلے بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے ٹائم کے ساتھ شاید بناتے ہیں۔ معطل ہوئی ٹرین اس وقت؟ ٹرین بہت دفعہ معطل ہوئی ہے، جب بھی جگہ باڑھ آئی ہے، جب بھی اپنا ٹرین کی سطح سے اوپر گزرا ہے اور ٹرین معطل رہی ہے۔ لیکن اس بار زیادہ تھا؟ اس وقت بہت زیادہ تھا، خاص طور پہ یہ تعلقہ ہے ہمارا دوڑ کا، اور یہ ٹوٹلی تباہ ہے۔ یہ دونوں اطراف سے آپ نے دیکھا، یہ سمندر کی پوزیشن ہے آپ کی، جہاں تک نظر جائے گی آپ کو کوئی فصل نہیں بچی۔ ٹھیک ہے، بالکل جہاں تک نظر جا رہی ہے ہمیں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اور ٹریک اس وقت بالکل معطل ہے ابھی بھی، لیکن جزوی طور پر بحال ضرور کیا گیا ہے۔ ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں اور ٹریک کو چلا تو گیا ہے، لیکن ڈیمیجز کو ابھی تک ریلوے حکام کی طرف سے نہ تو آ کے ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے اور نہ ہی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اوورآل صورتحال بری ہے۔ نواب شاہ۔ محسن، آپ کا بہت شکریہ۔ کمبر میں ایف پی بچاؤ حفاظتی بند کو شگاف پڑنے کا واقعہ، سابو بروڑ مکینوں کو ریسکیو کر کے خیمہ بستی قائم کر دی گئی، جہاں خیمہ بستی میں 2 وقت کی بریانی دی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اخلاق چانڈیوں سے۔ اخلاق، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلوے نے ضلع کمبر شداد کوٹ کو مکمل طور پر متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ جو ہے اس وقت میں موجود ہوں کمبر کی بائی پاس پر، جہاں پر سابو بوڑو جو پی بجا بند کے مقام پر ہی یہاں پر جو ہے یہ ان کے مکین ہیں، جو اس وقت جو ہے ان کو پاک آرمی کی جانب سے پانی کے کٹ لگنے کے باعث ان کو یہاں پر جو ہے ریسکیو کر کے یہاں پر خیمہ بستی قائم کر کے دی ہے۔ تو تب یہاں پر ان کو یہاں پر متاثرین ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ روٹی وغیرہ کھانا پینا کے لیے کوئی اشیاء ضلع انتظامیہ
है या दीगर है जो कोई इनके तक पहुँचाई है नहीं पहुँचा रहा है। भाई हमें ये बताइए आपको यहाँ पर कोई सहूलियात? सर यहाँ पे तो मैं तो सबसे पहले पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें रेस्क्यू किया। उसके बाद यहाँ पे हमें उन लोगों ने बहुत सारी हेल्प की और खेमा बस्ती कायम करके दी यहाँ पे, और उसके सिवा हमारा कोई तदारक नहीं हुआ। कोई यहाँ पे ना डीसी आया है अभी तक, ना डीएचओ की तरफ से कोई हमारी मालकी की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम का चावल दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल गई हैं। यहाँ पे गैस्ट्रो हो गई है, मलेरिया हो गया है। कल एक इस कैंप में एक बच्चा था, शहीद हो गया था। का ये कहना है कि पाक आर्मी का ये शुक्रिया अदा करें क्योंकि उनको यहाँ पर जो है रेस्क्यू करके यहाँ पर पहुँचाया, लेकिन इनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी हमें यहाँ पर सहूलियात मुयसर नहीं की गई, ना ही यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाई गई है, ना ही यहाँ पर जो मवेशियों के लिए कोई कैंप का इक़दाम किया, ना ही इनके खाने पीने के लिए उठाए गए जिसके बाद इनको परेशानी का। शुक्रिया आपका। उमरकोट की सरहाड़ी नहर में 2 मकाम पर शगाफ पड़ गए। उमरकोट की तहसील पथोरों के करीब नहर में 20-20 फीट चौड़े शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। उमरकोट की सरहाड़ी नहर में 2 मकाम पर शगाफ पड़ चुके हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। नहर में शगाफ से कई देहात ज़ेरे आब आए। तफसीलात अमीन डुप्लाई से जानते हैं। जी अमीन। उमरकोट की तहसील पिथौरा के करीब सरहाड़ी नहर शाख है जिसको 20-20 फुट के 2 से 3 शगाफ पड़ गए। इस सरहाड़ी नहर पर गांव हुंदो आरीसर अब्दुल वाहिद आरीसर के मकामात पर भी शगाफ पड़े। शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर आब आ गए। हजारों पर एकड़ पर मुश्तमिल फसलें ज़ेर आब आने की वजह से काश्तकार की परेशानियों में वैसे ही बहुत इजाफा हो चुका है, लेकिन इस पानी की वजह से काश्तकार बिल्कुल ही परेशान हो गए। थोड़ी बहुत जमीन से पानी निकाला था और पानी निकालने के बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ जिला भर में सैलाबी रेला तो गुजर गया मगर सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। बस्ती लालपुर दोआबा बस्ती संकी के सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि किसी ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। कई दिन से चिनाब के किनारे बैठे हैं। बात कर लेते हैं, आमिर डोगर मौजूद हैं। आमिर बताइएगा। और जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब तो गुजर गया मगर तबाही की दास्तानें पीछे छोड़ गया। मुजफ्फरगढ़ में किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा और ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से सर्वे ही नहीं किया गया और ना ही कोई इमदाद दी गई है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनक्की बंद के करीब इस वक्त हम मौजूद हैं। फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाया गया मगर उसके बावजूद लोगों का जो है वो अजाला नहीं हो सका। किसान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं कोई दसाओ कि कितना नुकसान थे आप तुहाडा? साडा ढेर नुकसान थे। घाह साडा ढाए गए, आम बाग वो ढाए गए, तो ढेर नुकसान मकसद थी यहाँ पे। अच्छा, ये दसाओ कि कहीं ना कोई राबता की कोई इमदाद मिली है? कशा ना कहीं नहीं मिली। अच्छा, क्या मुतालबा हुण तुहाडा? तुसां ये दसाओ हुण जेड़ा थी सके वो कर दो, तुहाडी मेहरबानी होसी। अच्छा, केड़ी फसल को नुकसान थे? उ'आं तो घाह हन ते चंगे भले बाग दरिया दे ढाए गए न, उ'आं बाग खड़ा है फल साल वो ढाए गए। हुण पानी दी सूरत हाल क्या है? पानी अगों तो आदन भी आवन वाला है, हुण वो तो हाल ही लाए गए। देखो जी बिल्कुल, किसान जो है वो खासी परेशानी का शिकार हैं। किसानों का ये कहना है कि अभी भी ने वार्निंग जो है वो जारी की गई है कि मज़ीद पानी जो है वो आ सकता है। जो पहले वाला सैलाबी रेला था वो तो गुजर गया मगर तबाही की दास्तानें इस वक्त जो है वो वाज़े दिखाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त खोर सैलाब मुतासरीन के हक पर भी डाका डालने लगे हैं। कराची के इलाके करंगी में कायम सैलाब मुतासरीन के कैंप में बाहर से गैर मुस्तहिक अफराद मुतासरीन बनकर आए, खाना खाया और जाते हुए सामान भी साथ ले गए। बात करते हैं, आजिज़ जमाली मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। जी, इस वक्त मैं कोरंगी के एक सैलाब मुतासरीन कैंप में मौजूद हूँ। कोरंगी में ये एक ही कैंप है और ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का कैंप इसलिए है कि ये मैंने पहली बार देखा है। कराची में कोई 40 के लगभग कैंप हैं, लेकिन ये पहला कैंप है जहाँ सैलाब मुतासरीन भी हैं, लेकिन ये जो स्कूल है वो भी रवां दवा है और जो बच्चे हैं वो भी ज़ेर तालीम है, कोई भी क्लास डिस्टर्ब नहीं है। जबकि दीगर तमाम कैंपों में क्लास डिस्टर्ब हैं, बच्चों की जो तालीम है वो मुतासर हो रही, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। मैं ज़रा कुछ मुतासरीन से बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? कंबर शदात कोट से। यहाँ पे कितने दिन हुए? यहाँ पे 4 दिन हो गए हमको। ठीक चल रहा है यहाँ जी पे? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक चल रहा है।
दावत इस्लामी के ये सपोर्ट से है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या मसाइल क्या है आप लोगों को यहाँ पे? मसाला कुछ नहीं है हमको यहाँ कोई पे। मसला नहीं है। नहीं। इस कैंप में कोई 400 के लगभग लोग हैं, 300 सवा 300 रजिस्टर्ड हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं बताया जा रहा है, कुछ समाजी रजाकार है। वैसे ये ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कैंप है, डिप्टी कमिश्नर जो कुरंगी है उनकी तरफ से। मैं यहाँ कुछ समाजी रजाकार, कुछ सियासी कारकुन भी काम कर रही हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। आप लोग क्या इंतज़ाम देखती हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे तकरीबन एक हफ़्ते से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग भी आए हैं सिंध से, इंटीरियर से, काफ़ी इलाकों से ऐसे आए जहाँ से इनके घर ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, सामान लुट गया बेचारों इस कैंप में किन चीज़ों की ज़रूरत है फौरी ये बताएं? इस कैंप में अभी फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ हुआ है। पानी, खाना, हर चीज़ इनको अवेलेबल है। बच्चों के लिए चीज़ें मिल रही हैं, टॉफ़ियाँ हैं, बिस्किट हैं और जो। अच्छा, आपने सुना इस कैंप पे ये कुरंगी 2.5 नंबर पे डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कायम करदा सैलाब मुतासरीन का कैंप है, जिनमें 400 के लगभग इस वक्त लोग मौजूद हैं। बच्चों और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इस कैंप पर मौजूद है। मसाइल ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मसाइल तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल जहाँ कैंप होंगे, जहाँ इतने सारे एक ही वक्त पे लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, मसाइल तो जन्म लेंगे। लेकिन खाने पीने या पानी या इस तरह इलाज, दीगर इस तरह का कोई मसला मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता यहाँ पे ये स्कूल चल रहा है जो रेगुलर। अजीज, आपका बहुत शुक्रिया। IMF ने पाकिस्तान की 7वीं और 8वीं जायजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 कारकर्दगी शराइत पूरी नहीं की, ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस की शराइत पर अमल दरामद नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने फ्यूल सब्सिडी को ख़त्म और पॉलिसी रेट में इजाफा किया। रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। IMF ने पाकिस्तान के 7वीं और 8वीं जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 कारकर्दगी शराइत पूरी नहीं की, ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस की शराइत पर अमल दरामद नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने फ्यूल सब्सिडी को ख़त्म और पॉलिसी रेट में इजाफा किया। रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है।